So we will start with a small exercise for our fingers. Sit straight. Hope you all are sitting straight with your foot down. और अगर foot down नहीं है तो आपके legs lotus में होने चाहिए, like that way the legs should be. We'll start with two exercise right now. I will teach you, and that will be continue you are doing before writing. लिखने से पहले कंटिन्यूज आप ये करोगे एंड यू बिलीव और नॉट आपकी हैंडराइटिंग भी चेंज होगी एंड यस द फोकस विल आल्सो इंक्रीज. स्टार्ट सिट प्रॉपर्ली. फ्री योर हैंड्स विद एवरीथिंग. अपने हाथ में से सब छोड़ दो. एम्प्टी योर हैंड्स. शो मी योर हैंड्स. अपना हाथ दिखाओ. ओके ओके. So now the first exercise which we are going to do is हमें exercise करनी है. Okay? तो सबसे पहले this hand straight position. Okay? And this hand in a thumb. अब ये जो face का इतना हिस्सा है ना, your face this much, इसको आगे लेके जाओ. This much only position. ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. This much. ये हाथ इतना होना चाहिए. बस this much. Okay? And now you have to keep your hand this one like that and start pushing, punching. You know to punch, right? Punch करना आता है ना? 1, 2, 3, 4. आराम से. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now switch your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay? Rub your hand. Every day you have to do this. Now when we are writing, this was the first exercise. Okay? Punching. And the position should be like that too. Make a habit now daily before writing. Do this because your finger get activated. Your palm get activated because we write with our fist, right? We write with our fist. Fist से ही लिखते हैं ना? कैसे लिखते हैं? We include our fist with it. Now this is the main part. जब हम लिखते हैं, so this is the part which has been giving us support to us to hold a finger, pencil, pen. Agree? Agree? कुछ तो भी बोलोगा. हाँ, yes. Show me the signs. Are you listening or not? I am audible or not? तो लग रहा है कि पिक्चर फोटो से ही बात कर रही. Okay, very good. Thank you. So when we are doing this, now the second, there are lots of activities, but I will be starting. This is called graphotherapy. This is a graphotherapy. So this will be taken in your class daily. When I will be coming in a school, daily this will be taken. So this first exercise I showed you. Now the second exercise. This is our meridian point. This gives us support while writing. Whoever lefty, they say Azan lefty hai, baki righty hai, whatever. So we take a support from this. Now what we have to do? Same like अपने ये face का इतना distance रखना है, but it should be in front of you. Okay? Close your fingers, and you have to press it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arwa, see the hand how it is. It is not like that way. It is this way. आपका हाथ ही नहीं दिख रहा है. आपका ऐसा लग रहा है फीस्ट बनाया है. फीस्ट नहीं बनाना है. स्ट्रेट स्ट्रेट. ओके. 10 अगेन. एंड अपने फेस के से ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना. रॉन्ग. In front of your face, it should balance like that way to your face. और इतना दूर भी नहीं चाहिए, इतना पास भी नहीं चाहिए. It should be exactly to your face. Okay? 1, 2, 3, 4. Slowly. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Bring out your fingers. Yes. Okay, so your fingers are charged. So now when you hold a pen or a pencil, it should be gripped. Now how to grip the pencil and pen?
that I will teach you later on. So this is the part of a graphotherapy. Right now I taught you. So it's a graphotherapy. You have to mention that 2 exercises I have given you. Write it down. Graphotherapy. The session started with the practice of a graphotherapy. So the 2 exercises which I showed you is write graphotherapy, write today's date. Don't never forget to write dates, children. Dates gives you a proven thing. Yes, this day you have done this work. When you go back and come back to revise the thing, the date will show you, yes, you have done this, and so day and so date. Grapho means when you do the writing part, because everything is related to our brain. Nothing is without that. 2 मिनट के लिए अगर मैं बोलूं ब्रेन बंद कर दो, हो सकता है? कोमा में चले जाओगे. यू माइट बी नोइंग द पीपल हु आर इन अ कोमा. उनका ब्रेन वैसे एक्टिवेट नहीं रहता, इसके लिए बॉडी काम नहीं करती है. ऑल्दो उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है कोमा में, लेकिन कॉन्शियस माइंड इज स्लीपिंग फॉर दैट. Okay, this all things slowly and steadily more ahead I will be teaching, although I have taught you in this last academic year many things I have taught you. Okay, so the first exercise was punching 10 counts on a 10 counts. कितने counts होने चाहिए? 10 counts each side 10 counts, and it should be done regularly. ये regularly होना चाहिए. Okay, then the second one I showed to touch your meridian point of a karate chop. This is called karate chop point. 10 counts. But it should be 10 counts, matlab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can take it like that also. Isko rakh ke ye, isko rakh ke ye. Okay, so 20 it should be. That clear? Now why I taught you this? Because when we are writing, this exercise is must. आपकी हैंडराइटिंग भी चेंज होगी और जब लिखते हो पूरा फोकस वहीं पे रहेगा. नो डिस्ट्रैक्शन विल बी देयर. इनिशियल स्टेज में प्रॉब्लम होगा, देन अहेड इट विल बी टेकन केयर. So daily you have to do that, and I will tell you, I will share in a group later on. अभी तो अपन सेशन शुरू करते हैं कि आपको डेली क्या अपडेट करना है ग्रुप के अंदर अबाउट ग्राफोथेरेपी. होप यू एंजॉयड. कुछ नया सीखने मिला? आर यू लर्निंग समथिंग न्यू? यस या नो? Yes, ma'am. Okay. Bye. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Azan, what about you? Alfia B, what about you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Bye. Yes, ma'am. Chalo, now I will be starting sharing the quality of our brain, the speciality of our brain वीडियो जो बाकी था वो. लेकिन उसके पहले मैं आपके साथ एक एक्रोनियम का जो मैं बता रही थी. व्हाट इज एक्रोनियम? Acronym is a part of English speech. Okay, it's a part of English speech जिसके अंदर एक्रोनियम. अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोग आजकल के जिंजी ये हो तो शॉर्ट फॉर्म में कुछ ना कुछ लिखते हो? कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ अ शॉर्ट फॉर्म यू यूज? लॉल, LOL. लॉल का मतलब क्या होता है? आप SMS आप टाइप करते हो तो बहुत बार शॉर्ट फॉर्म्स यूज करते हो ना. लॉल का मतलब क्या होता है? टेल मी दैट. यस या नो? स्पीक आउट. आई एम गिविंग यू परमिशन टू स्पीक. लाफ आउट लाउडली. लाफ आउट लाउडली. BTW का मतलब क्या होता है? BTW. Better than you. By the way. Okay, so acronym is a short form which has been used. जैसे NASA का, you know NASA. Can you write the spelling? Spelling तो बोल सकता है NASA का. NASA कैसे स्पेल होता है? कैसे स्पेल होता है? NASA. Very good. NASA. 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 Okay. NASA का मतलब है जो साइंस, जहाँ पे जो अमेरिका के अंदर जो स्पेस में जाते हैं, दैट इज द नासा साइंस सेंटर. यू नो दैट साइंटिस्ट वहां पे सब रिसर्च करते हैं, वो तो सबको पता है ना. नासा इज व्हाट?
सो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनेटिक। एरोनेटिक मतलब जो एयर के अंदर स्पेस में सब होता है, हवा में। ओके, तो सबसे पहले लिखो नासा, NASA, नासा लिखो। उसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपको ढूंढना है, आप ढूंढ के बाद में लिख लेना। इतने तो स्मार्ट हो आप लोग, चैट जीपीटी तो यूज करने आता ही है, गूगल आता है। दैट इज अ ब्रेव थिंग, गुड थिंग, आज की डिमांड है। अभी ये साल सब कैरिकुलम यही सब होने वाला है, एआई आने वाला है, आपको वही सिखाने वाली हूँ, ग्राफोथेरेपी सिखाने वाली हूँ, कैनवा सिखाने वाली हूँ। ज्योग्राफी को बहुत एक्सप्लोर करना है प्रैक्टिकली, मेनी थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। ओके, देन यूनेस्को, यू माइट बी नोइंग यूनेस्को, UNESCO, राइट इट डाउन, कैपिटल में लिखो। नासा भी कैपिटल में लिखो, NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म है। देन द सेकेंड वन इज यूनेस्को, UNESCO, UNESCO, कैपिटल में लिखो यूनेस्को। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को पूरे इसके अंदर एजुकेशन के लिए फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में। देन द थर्ड वन, रैम, RAM, रैम, ये कंप्यूटर के पार्ट का है, आई थिंक सो कि आप लोग ने पढ़ा है, कंप्यूटर्स पढ़ते हो उसमें होगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, दिस थ्री थिंग्स यू हैव टू फाइंड एंड शेयर इन द ग्रुप। वो मैंने तो बोल तो दिया है, लेकिन लिखो एंड लर्न दैट। और उसके अलावा आपको तीन चार चीज और ढूंढनी रहेगी, आई विल सेंड इन अ ग्रुप। ओके, जैसे ATM का फुल फॉर्म, VIP का फुल फॉर्म, CCTV का फुल फॉर्म, ये सबका भी फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट है। ATM शॉर्ट फॉर्म है, CCTV शॉर्ट फॉर्म है, VIP शॉर्ट फॉर्म है, ये सब शॉर्ट फॉर्म। ओके, सवाल आता है आपके दिमाग में कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, दिस शॉर्ट फॉर्म इज इंपॉर्टेंट? एनीवन हैविंग सच क्वेश्चन? Yes. क्या क्या यस, कि क्यों है, इसकी जरूरत क्यों थी, कब शुरू हुआ? हर एक चीज का एक इन्वेंशन टाइम रहता है ना, क्यों किया गया था, व्हाई इट स्टार्टेड, व्हाई सच थिंग्स। कैन यू गिव मी आइडिया व्हाई अ शॉर्ट फॉर्म इज बीन यूज्ड? आप बताओ चलो, क्यों ऐसा शॉर्ट फॉर्म्स की जरूरत क्यों है? चलो अब आप लोग मुझे बताओ, शॉर्ट फॉर्म्स की जरूरत क्यों है, क्या होता है शॉर्ट फॉर्म्स यूज करने से? एक्रोनियम क्यों शुरू किया गया होगा, किसने किया होगा? आपके तो दिमाग में सवाल आते नहीं है, शायद आते, पूछा तो कोई नहीं रहा, पूछ तो कोई नहीं रहा है। Ma'am, can I say? यस, यस PM से। Because many words are like that, more big words. That's why everyone use short form. Very good. Pat your back. Shabash. Yes. To save time. Very good. That is the bang on answer. So, to save time. And when it started, don't you have any question like that? Why it started and when it started? When it started implementing Alifia, Arwa, Anshara, Azan, Ananya, don't you have such questions? सवाल नहीं आता है कि क्यों स्टार्ट किया गया था, क्यों होता है ये? स्पेशली इट स्टार्टेड ड्यूरिंग द वॉर जब शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, या जो भी वॉर का टाइम, जब भी वॉर आता था, तो शॉर्ट फॉर्म पता है, कोडिंग आप पिक्चर्स में देखते होगे, कोड से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को लोग, कोड वाइज शॉर्ट फॉर्म्स रहते हैं। ओके, वॉच द मूवीज, इफ नॉट देन आर्मी के कुछ ऐसे मूवीज जिसके अंदर उन लोग कोड एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो दूसरा पर्सन समझ जाता है। सो फॉर दैट द शॉर्ट फॉर्म्स वर्ड स्टार्टेड। द इम्पोर्टेंस इज वॉच के टाइम बचता है, सबसे पहले तो टाइम बचता है, टाइम के साथ इजी होता है याद रखने के लिए। अब मुझे एक सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और आपको याद भी रखने के लिए अच्छा होता है, इट हेल्प्स यू टू लर्न। अब मैं आपको बोलूं रेनबो के कौन से कलर्स है, उसको अगर याद रखना है पहले लाइन से, नीचे से या ऊपर से, तो आप कैसे याद रखते हो? एनीवन हैव आइडिया रेनबो के कलर्स को शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम याद रखते हैं? विबग्योर, विबग्योर, BIP
कैपिटल में लिखो VIBGYOR, VIBGYOR, Vibgyor. Now what is the full form of Vibgyor? ये रेनबो के 7 कलर्स है, राइट? 7 लेटर्स है ना, VIB, then GYOR. अब बताओ कलर्स कैसे आएंगे? V for Violet, very good. I for indigo, very good. D for G for P green, blue, very good. Then G for green, G for green, Y for yellow, yellow, O for orange, R for red. okay. So Red. this is the way कि जब रेनबो बनता है तो नीचे से ऊपर तक ऐसे कलर आते हैं, रेड, ऑरेंज, देन व्हाट इट इज, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, purple, अरे पर्पल इज नॉट देयर, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट. टी तो है ही नहीं उसमें, पर्पल कहाँ से आया? इंडिगो है ना, इंडिगो इज अ शेड ऑफ अ पर्पल शेड्स का. ओके, सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म एंड दिस इज द एक्रोनियम ऑफ विबग्योर. विबग्योर मतलब रेनबो, रेनबो के कलर्स का है. लर्न समथिंग न्यू, कुछ नए सीखने मिला? यस या नो? स्पीक आउट. yes, ओके, अब वापस मैंने जैसे कहा कि इसकी जरूरत क्यों थी. हाउ डिड एक्रोनियम स्टार्टेड? एक्रोनियम स्पेशली स्टार्टेड ड्यूरिंग द वॉर. साइंटिस्ट जब अपना वर्ड शेयर करते हैं, आप लोग ने साइंस में भी पढ़े होंगे, H2O वाटर का फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म है. साइंस में भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हम पढ़ते हैं, राइट? यस या नो? yes, यस. सो इसके लिए साइंटिस्ट लोग के लिए वॉर के टाइम पे गवर्नमेंट्स यूज करते हैं, जैसे VIP वाला वर्ड है, ATM यूज करते हैं, फॉर दैट दिस इसके इजीली समझ में आए और इजीली बताने को हो जाए, इसके लिए दिस इज बीन यूज. अपना नाम भी अपन शॉर्ट में बहुत बहुत डाल देते हैं ना, बहुत सारे जन शॉर्ट पे अपना नाम यूज करते हैं या अपना पेट नेम यूज करते हैं. अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जब पहले चलती थी, when started, so lots of organization was there which was having a issue to remember the long name, बड़ा बड़ी चीजें, साइंटिफिक नेम याद रखने के लिए. So they started this acronym और शॉर्ट फॉर्म चल. अब ना होमवर्क फॉर यू इज, अपने खुद के नाम का एक्रोनियम भेजना है, बताना है, आपको लिख के सेट करना है. इट शुड बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी पॉजिटिव. ओके, जैसे मैं अपना अगर एक्रोनियम मैंने बनाया है तस्नीम, माय नेम इज तस्नीम, तो तस्नीम का टैलेंटेड, एक्टिव, स्मार्ट, नोबल, एनर्जेटिक, एक्सीलेंट, मोटिवेटेड. So each is very clearly improving and giving a value to my name letter. Again, I will repeat Tasneem. TASNEEM. T for talented, A for active, S for smart, N for noble, E for energetic, E for excellent, and M for motivated. वैसे ही आपको अपने नाम का एक्रोनियम बनाना है और ग्रुप पे सेंड करना है. Okay, your name, your father's name and your mother's name, ये 3 चीज का टास्क है.